इतना ही कहकर अपनी बातें अंत करता हूँ। सब हमको फिर से जोहार। अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी जी योगी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना अच्छा से हम लोग को एक्सप्लेन किया कि फिफ्थ शेड्यूल क्या है, 5वीं অনুসূচি। तो আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাবো অ্যালবার্ট স্যারকে। উনি বয়স্ক মানুষ এবং অসুস্থ, তবুও গতকালকে প্রায় 6 ঘন্টার জার্নি করে এসেছে এবং পঞ্চম তপশিলি নিয়ে আমাদের অনেক কিছু বললেন। যেহেতু এখানে টিএসসি রয়েছে, কিন্তু টিএসসি গঠন করতে গেলে কি কি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে টিএসসি গঠন করা যায় সেটা আমরা প্রায় সবাই জানি যারা আমরা সংগঠন করছি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যে টিএসসিটা নির্মাণ হয়েছে, যেটা ট্রাইবাল অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল, সেটা 1953 সালের যে অ্যাক্ট, সেই অ্যাক্টটাকে সামনে রেখে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি টিএসসি তৈরি করতে গেলেই কিন্তু আগে আমাদের ফিফথ শিডিউলের একটা প্রাবধান আছে, সেটা কোথাও না কোথাও আমরা এখন বুঝতে পারছি বলেই ফিফথ শিডিউলটা নিয়েই কিন্তু সমগ্র ইউনাইটেড ফোরাম বলুন বা আদিবাসীরা কিন্তু ফিফথ শিডিউলের উপরেই ডিমান্ড করছে। যাই হোক, असंख्य धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, इतना दूर से आए और इतना बढ़िया से हम लोग को समझाए, मार्गदर्शन किए, इसके लिए आभारी हूँ हम लोग। और আমাদের প্রশ্ন উত্তর পর্ব অ্যালবার্ট স্যারকে আমরা জিজ্ঞাসা করব, ওয়াল্টার কাটুলা স্যারকে। কিন্তু তার আগে আমরা আমাদের মধ্যে আরেক বড় মাপের মানুষকে পেয়ে গেছি, ডাক্তার সন্তোষ কুজুর, যিনি মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট। এখন উনি বর্তমানে আদ্রাতে পোস্টেড রয়েছেন ইস্টার্ন রেলওয়ের তরফ থেকে। সবাই মিলে একবার জোরে হাততালি দিয়ে ওনাকে সম্বর্ধনা জানাবো। এবং আমাদের যেসব মহিলা সমর্থক রয়েছে এবং মহিলা আমাদের কর্মীরা রয়েছে, ওনাদের আহ্বান জানাবো যে আমাদের মাননীয় স্যার ডাক্তার সন্তোষ কুজুর মহাশয়কে আমরা সম্বর্ধনা জানাবো। এবং ইউনাইটেড ফোরামের পক্ষ থেকে এই মঞ্চ আজকে ধন্য হয়েছে ওনার মতো মহানুভব, इतना बढ़िया हस्ती आए हैं हम लोग का मार्गदर्शन करवाने के लिए। और बहुत बहुत आभार हूँ सर हम लोग यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो प्लीज আমি আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের মহিলা কর্মীদের, আপনারা আসুন এবং সংবর্ধনা আমরা জ্ঞাপন করবো মাননীয় ডাক্তার সন্তোষ কুজুর মহাশয়কে। আমাদের কাছে খবর নিচে বিশম আদিবাসী নৌকার মাননীয় রাজ্য সম্পাদক সুরজিৎ সিং হাসদা মহাশয় এসে গেছেন, আমাদের সদস্যদের মধ্যে অনেকে আসবে। তো মাননীয় সন্তোষ কুজুর মহাশয়কে সবাই মিলে জোরে হাততালি দেবেন। দূর থেকে আমরা আমাদের সংগঠনকে পক্ষ করার জন্য এসেছেন। আমাদের ধন্যবাদ স্যার। সবাই মিলে হাততালি আরেকবার। আমরা बहुत बहुत बधाई आप यहाँ पहुंचे। संतोष कुजूर सर, আমি ব্যক্তিগতভাবে मेरे तरफ से भी हार्दिक बधाई, बहुत बहुत स्वागत है सर आपको। यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशনের তরফ থেকে যে একদিনের সেমিনার চলছে, সেই সেমিনারের প্রথম বক্তা ওয়াল্টার কাটুলা স্যার বললেন আমাদের ফিফথ শিডিউল নিয়ে। এখন আমরা মাইক কোন একটা সদস্য মোহন বা কেউ একজন চলে আসবে, আমি মাইকটা দেবো। কারো কোনো যদি কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন। তার মধ্যে আরো একবার ঘোষণা করছি, যেসব সংগঠন এসেছেন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের তরফ থেকে এবং আমাদের সাঁতার পাঠক মাতার তরফ থেকে, তার সাথে নাম আমি আরো কোলা সমাজ, সাঁতার টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন, ভারত জাকাত পাঠক মাতা, তার সাথে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল, মুন্ডা সমাজ, ভৌ সমাজ, ভারত সমিতি, একতা মঞ্চ, আদিবাসী বাঁচাও এবং ভুগিরি বাঁচাও, এই সমস্ত সংগঠনের তরফ থেকে যদি প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারি এসে থাকেন, শৈলমান্দা ওখানে আছেন, একটু প্লিজ আপনাদের নামটা ওখানে নথিভুক্ত করাবেন, আপনাদের আমরা সম্বর্ধনা জানাবো। তো যাই হোক, এখন আমরা প্রশ্ন উত্তর পর্বে চলে যাব। মাননীয় শৈলমান্দাকে বলবো আমাদের কোনো একটা সংগঠনের সদস্যকে পাঠাতে মাইকটা। তাদের কোনো কোশ্চেন যদি থাকে একটু স্যারের সাথে আমরা আলোচনা করব। नमस्ते सर। सर पहले तो वाटर
सर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप अपने तबीयत खराब होने के बावजूद भी यहाँ पे आए और फिर शिविर के बारे में बोले। तो मेरा सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में फिफ्थ शेड्यूल लागू किया जा सकता है, जहाँ पे 23 जो जिला है और मुश्किल से 5 जो जिला है जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो थोड़ा सा डेंस है। तो आप मेरा एक दो सवाल है, वन बाय वन बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ये वेस्ट बंगाल में लागू करना पॉसिबल है? क्या नाम हुआ आपका? बोलो सर मेरा नाम पार्सल किसको जी, हाँ किसको जी। ये मैं वैसा हम नहीं कर सकते हैं कि हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये आज का सबसे बड़ा सवाल है कि हम लोग कितने संगठित हैं। सारा चीज वहां पर आ रहा है। अगर हम लोग संगठित हैं तो सब कुछ होगा, और अगर हम लोग आपस में ही खिंचातानी लड़ते हैं झगड़ते हैं तो ये संभव नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपका जो ये फोरम है ये बहुत अच्छा आपका पहल है, और इस पहल के द्वारा आपने जितने भी आदिवासी ग्रुप हैं, जितने भी आदिवासी संगठन हैं, जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, सबको एकजुट करने का प्रयास किया है। अगर वो एक पॉलिटिकल आवाज में बदल जाए। आजकल पॉलिटिक्स ही सब जगह, विशेष करके 10 सालों से हम देख रहे हैं, सब जगह पॉलिटिक्स है, कानून कहीं नहीं है। और पॉलिटिक्स में संख्या बल सबसे ज्यादा है। आप लोग एकजुट होइए सबसे पहले, और किन किन एरिया को लेना चाहते हैं उसका पूरा डेटा लीजिए, कितनी जनसंख्या है, उसका क्रॉस सेक्शन जो जनसंख्या है आदिवासी वर्सेस अदर कैसा है, और उनका भाषा वो अपने रीति रिवाजों से पालन कर रहे हैं, अभी भी कायम रखे हुए हैं। ये सारी चीजों को एक माप के रूप में रख सकते हैं। और विशेष करके जो सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर क्या है कि आपके पास टीएससी है, टीएससी को मजबूत कीजिए, सब ग्रुप में आ जाए। तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि अनुसूचित क्षेत्र नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। थैंक यू। मतलब बात यह है कि लागू किया जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल। अब दूसरा वाला जो सवाल मेरा है, देखिए आप बोले कि टीआईसी के तौर पे ये दिक्कत यहाँ पे ये है कि टीआईसी का जो हेड है वो जो है नॉन ट्राइबल है, वो हमारा मुख्यमंत्री है, और उनका अंदर में जितने सारे वो कमिटी में है सारे के सारे वो जो मतलब ब्राह्मणिज्म मेंटेलिटी वाले जो है, जिनके लिए आप बोले कि ताली बजाने के लिए वो 16 या जो मतलब 18 जो एमएलए या एमपीज है वो आदिवासी के लिए कुछ भी नहीं बोलते। या तो वो फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, या जंगल जमीन हो, या फेक एसटी सर्टिफिकेट हो, या तो यूसीसी हो। तो इस हालात में तो हम लोग का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? और ये जो 15 जन का जो टीएससी का जो कमिटी है वहां पर भी एक जो है नॉन एसटी जो है सुकुमार महातो, वो खुद एक नॉन एसटी है, ममता बनर्जी खुद एक नॉन एसटी है। तो यहाँ पे कैसे पॉसिबल होगा कि इसके बारे में थोड़ा यदि आप रास्ता दिखाते? जी, ये जो प्रॉब्लम आप कह रहे हैं सब जगह है, झारखंड में भी है। टीएससी ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइब ये एक्सक्लूसिवली ट्राइब्स के लिए, जैसे कि ट्रेन वगैरह में देखते हैं महिलाओं के लिए, तो वहां पर जेंट्स नहीं चढ़ना है। तो ये
ट्राइब्स के लिए ही है। हाँ भाई ट्राइब्स के लिए है, तो दूसरा आदमी को नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी किसी का महत्वाकांक्षा चाहिए या दबाने का होता है वो है, लेकिन नियम का है कि सीएम टीएससी का अध्यक्ष बने, ऐसा नहीं है। होना तो क्या चाहिए, जो 20 मेंबर्स हैं वो आपस में बैठ करके एक अध्यक्ष चुनिए, कि हमारा सभा का जो हमारे पारंपरिक व्यवस्था का एक प्रतीक भी है। तो बाहर से थोपा नहीं, या तो खुद को अपने थोप दिया है, व्याकरण में भी ऐसा हुआ है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है, और हमने उसका विरोध किया है, अभी भी कर रहे हैं, करते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। और महत्व तो खैर रहना ही नहीं चाहिए। हाँ, कल को अगर एसपी बन जाता है तब की बात अलग है, हम उसको कानून नहीं लिया कर सकते हैं, लेकिन दूसरा आदमी नहीं। इसके लिए राज्यपाल है, एक राज्यपाल को कानून बनाने का, नियमावली बनाने का, और क्या जितने भी गुड गवर्नेंस के लिए उसको पूरा अधिकार है। वो उस पर दबाव डाला जा सकता है कि आप जितने भी राज्य के आदिवासी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनका एक रक्षक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पर पहल करें, इंटरवीन करें, और जो नियमावली है उसको चेंज करें। ये किया जा सकता है। कोर्ट कचहरी हमने देख लिया, बहुत फायदा नहीं है, बहुत लंबा खींचता है, बहुत लंबा खींचता है। उसके लिए आपस में बातचीत करके, दबाव दे करके और आंदोलन करके ज्यादा अच्छा है। राज्यपाल पर आप लोग दबाव दीजिए। नमस्कार सर, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप अपने व्यस्ततम वैसे समय निकालकर हम लोगों के पश्चिम बंगाल में शेड्यूल 5 को लेकर विशेष चर्चा के लिए आए। मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगर हम लोग किसी ब्लॉक या प्रखंड कहिए या डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल 5 को लागू करते हैं, और जिसमें आपने संख्या का जिक्र किया, तो उस संख्या का अनुपात कितने होने पर वहां शेड्यूल 5 लागू किया जा सकता है? जनसंख्या तो है, आज का क्राइटेरिया है, पहले नहीं था। झारखंड में एक केस हुआ था, प्रेमचंद मुर्मू नाम सुने होंगे, हमारे मित्र हैं, ये जानते हैं, प्रेमचंद मुर्मू आप जानते हैं। किसी जो नॉन ट्राइब है सामने एरिया में आदिवासियों की संख्या बहुत कम हो गई है, और इसलिए इसको डिलिस्ट किया जाए, हटा दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने उसका फैसला आखिरी में दिया कि हम वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एरिया से होता है, जनसंख्या से नहीं। उसका निर्धारण, अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण जनसंख्या के बल पर नहीं होता है, बल्कि उस कम्युनिटी के आधार पर होता है। हाँ, लेकिन अभी जो है एक भेपर कमीशन के बाद जो भी आया है कि जनसंख्या को भी एक क्राइटेरिया रखा गया है, और भूरिया कमेटी भी है उसका भी भूरिया रिपोर्ट भी है चर्चा, और उसमें कम से कम 40% रखा गया है, एक बेंच मार्क, कम से कम 40%, 100 में से 40 आदमी अनुसूचित जनजाति के लोग वहां पर निवास करते चाहिए। ये चीज है, ठीक सर। सेकंड जो मेरा सवाल है वो ये है कि अगर अक्सर हम लोग पश्चिम बंगाल में देखे हैं कि पहले एक समय में जो रिजर्व सीट हुआ करती थी विधानसभा के क्षेत्र में आदिवासियों की, वो सीट अभी कुछ इस तरह से उन सीटों का बंटवारा कर दिया गया है, उसका संख्या में इधर उधर हेराफेरी करके
कि उसको अब जनरल सीट में तब्दील कर दिया गया। अभी जैसे कि हम लोग पश्चिम बर्धमान में इस वक्त हम लोग हैं, और पश्चिम बर्धमान में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो ब्लॉक या प्रखंड है वो कक्षा है, लेकिन कक्षा ब्लॉक को 2 विधानसभा में बांट दिया गया है, क्योंकि वहां आदिवासियों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो उन आदिवासियों की संख्या को घटाने के लिए कक्षा ब्लॉक को 2 विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया गया। ऐसे ही मैं पहले दुर्गापुर विधानसभा के अंतर्गत आता था, और वो उकड़ा विधानसभा अंतर्गत एक वो हम लोग का विधानसभा था जो वर्तमान में पांडेवसर विधानसभा के नाम से जाना जाता है। वो आपका पहले SC रिजर्व सीट था, उसको इस तरह से तोड़ा गया कि बाद में वो जनरल सीट कर दिया गया है, और पॉपुलेशन को भी वो विधानसभा के बंटवारे के दरमियान इधर से उधर कर दिया गया। तो क्या इस परिस्थिति में यह संभव है कि अगर हम लोगों का कहीं किसी क्षेत्र में पॉपुलेशन अच्छा है, तो क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन अच्छा है तो शेड्यूल 5 का संभावना बनता है, ब्लॉक प्रखंड के स्तर पर हो या डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर हो, तो उसको फिर से वहाँ शेड्यूल 5 नहीं देना है। इसलिए हम लोगों का पॉपुलेशन को कम करने के लिए ब्लॉक का बंटवारा किया जा सकता है या अंचल का बंटवारा किया जा सकता है, जिसका प्रभाव शेड्यूल 5 पर पड़ेगा। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? ये एक बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ का प्रॉब्लम नहीं है, सभी जगह। जब एक उदाहरण के लिए कहूँगा, जब राज्य पुनर्गठन हो रहा था 55-56 आसपास ये तस्वीरों में, तो 52 तो ये झारखंड भी उसी समय अलग हो सकता था बिहार से, लेकिन क्या वो पॉलिटिक्स गेम कुछ भी नहीं। जापान से मुंडा को दिल्ली बुला दिया गया जानबूझकर, और वो पुनर्गठन की जो टीम आई थी वो राज्य आई और अपना काम पूरा करके चली गई। तो ऐसा गेम है, और वो जो बंटवारा वो भी ऐसा ही होता है। तो उसके लिए एक ही चीज है, आपको हम लोगों को, मैं नहीं कह रहा हूं आपको, हम सबों को अपने अपने क्षेत्र में वेस्ट बंगाल में है, तो एक थिंक टैंक बनाइए, थिंक टैंक जो कि रियली सोचता है समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए, और घटनाओं को क्या क्या घटनाएं घटती हैं। ब्यूरोक्रेट्स हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, ब्यूरोक्रेट्स तो हमारे लिए कभी नहीं सोचे। तो वहाँ पर क्या बातें चल रही है, क्यों चल रही है, वो सब बातें आनी चाहिए, और उस ग्रुप में इसका डिस्कशन करना पड़ेगा, और डिस्कशन होगा तो नेचुरली कुछ न कुछ सोल्यूशन निकलेगा, और इंटरफीयर करना पड़ेगा सरकार को, भाई ऐसा नहीं करें, ऐसे करें। एक छाया मंत्रिमंडल, एक छाया सरकार की भांति यूज करना पड़ेगा, जब तक कि हम लोग के हाथ में सत्ता नहीं आ जाती है। इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं, हम लोग को नचाते ही है। और यहाँ सिर्फ पंजाब की, वेस्ट बंगाल की बात नहीं है, सब जगह ऐसा ही है। बहुत टफ है, जागरूक तो होना ही पड़ेगा इसके लिए, और सामने आना पड़ेगा नौकरी वालों को, जो गांव वाले हैं, सबको एकजुट करना, ठीक है। যারা এসছেন আপনারা বাংলায় প্রশ্ন করলে কোনো অসুবিধা নেই, বাংলায় আপনারা প্রশ্ন করুন। আমরা এখানে আমাদের ভূগোল আছে, আমি আছি, আমরা ট্রান্সফার করবো। আপনারা বাংলা প্রশ্ন করলেও অসুবিধা নেই, বিষয়টা ওনারা আপনারা ঠিক আছে। थिंक शेड्यूल के बारे में मेरा पहला क्वेश्चन, हम बंगाल में जितने सारे एमएलए को चुनते हैं और 5 साल के बाद,
तो फिफ्थ शेड्यूल बंगाल में लागू करने के लिए इस एमएलए और एमपी को क्या भूमिका है कि कोई उसका कोई काम होता है फिफ्थ शेड्यूल लागू करने के लिए? देखिए, भूमिका एमएलए हो चाहे एमपी हो, आज की तारीख में आवाज, वॉइस, उसकी ही कीमत होती है। आपके पक्ष में कितने लोग हैं, कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं। अगर आप चुपचाप रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एमएलए एमपी आपके साथ खड़े आते ताकत मिल जाती है, ये जरूरी है। और इसलिए जैसे मैंने उसमें कहा, मीडिया भी आपका होना चाहिए। खड़ा कीजिए, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो असंभव है, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आवाज चाहे एमएलए से हो चाहे पब्लिक हो, नीचे सब तरफ से होना चाहिए। सर, हम जो चुनते हैं एमपी की एमएलए को, वो तो रिजर्वेशन में आता है, लेकिन इन 16 एमएलए और 2 एमपी बंगाल के लिए और आदिवासी के लिए फिफ्थ शेड्यूल की पैसा एक्ट, इसके बारे में एक भी बात नहीं करते। फिर हमारा जो सांगठनिक सामाजिक संगठन है, इसका काम बहुत जटिल हो सकता है। ये हमारा जो आवाज फिफ्थ शेड्यूल लागू करने के लिए, ये आवाज उसका काम तक नहीं पहुंचा। तो हम पहुंचाते इसीलिए जो हमारा एमएलए है और एमपी। फिर भी बंगाल में ऐसा एमएलए एमपी है नहीं जो ये बात कहा है। जब पश्चिम बंगाल में जिन क्षेत्रों में संरक्षित इलाका है, उसमें फिफ्थ शेड्यूल लागू कर दिया। ऐसा बात आज भी और कोई भी एमएलए एमपी नहीं था। इसके बारे में आपका क्या? जी जी, ये भी एक जनरल समस्या है। हमारा एमएलए आदिवासियों के हितों के प्रति बिल्कुल ही असंवेदनशील है। वो अपनी पार्टियों का ज्यादा काम करते हैं, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, हम सब उनको क्योंकि हमारे ही वोट से जीतते हैं, उनको पूरा धमकी देना पड़ेगा कि भाई अगर आप हमारा काम नहीं करेंगे तो अगली बार आपको हम वोट नहीं देंगे। जब हमारा एमएलए चाहे जितने भी राजनीतिक पार्टियां एक ही चीज से डरती है, और वो वोट से। अगर वोट को हम कंट्रोल कर लें, ग्राम सभा को एकदम मजबूत कर लें, तो अगला वोट यही रास्ता। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन, हमारा बंगाल का जो